Good morning to all. Welcome to our English class. In our English class, today we will understand the first chapter of our English reader book, that is The Raindrops. The Raindrops. Raindrops means बारिश की बूंदें. So this story is about two little raindrops. I have already explained you the summary of this chapter. So जो two little raindrops and their name is Pit and Pat. Before reading this chapter, let's do this simple jumble game. That is, we have to jumble the words to find the new words, to find the words which are related with weather. Weather means मौसम. So GFO. So we can make it here fog. WONS. Here we can make it snow. SNOW, snow. NAIR, rain. RAIN, rain. TENRIW, we can make it the weather, winter. So let's start reading and understanding this chapter. In this first paragraph, it starts like this. Farmer Seth had a large field of wheat. If you see the picture of this, this is a picture of a farmer who is standing in his field. जो अपने field में खड़ा है, you can see the tractor and trolley there, and he is standing in his field. अपने खेतों में. किसके खेतों में? Wheat के खेतों में. Wheat means गेहूं के खेतों में. He weeded it carefully and prayed for rain every year. Now, weeded means unwanted plants को खेतों से remove करना. Weed means to remove unwanted or harmful plants from the field which may damage the crop. जिसकी वजह से crop की growth नहीं होगी. So उनको remove करने को we call it weeded. So farmer said, this farmer has already weeded it out. Weeded means removed unwanted plants or harmful plants from the field carefully and prayed for the rain every day. Now he needs to water his field. अब उसको अपने खेतों को पानी देना है. And the only source of watering the field is rain. So every day he is praying. हर दिन वो प्रे करता है कि बारिश हो जाए, but it is not coming. He wanted to sell his wheat so that his family could live on the money for the rest of the year. Now, what's the purpose of doing this? वो क्या चाहता है कि उसकी wheat अच्छी हो जाए, उसकी crop good हो, और he can sell that crop in the market, उसको बेचे, and he will earn the money so that पूरे साल के लिए उसकी family को खाने को मिल जाए. For his livelihood, अपने पूरे साल का उसका livelihood अच्छी तरह से हो जाए. However, after working hard for many months, अब कई we all know, we belong to Punjab state, so we know farming. खेती क्या होती है? 6 months हम लोग wheat की खेती करते हैं, and 6 months we will do rice, right? तो he is working from many months. He is doing hard work from many months. कई महीनों से वो hard work कर रहा है. He saw that the weeds had started to wither and drop. Wither means to becoming dry and they are going to die. Means सूखना, मरने वाली condition में. But these weeds जो grow हो रहे हैं without water, now they are getting weak and they are going to die. And drop means झुलस जाना, लटक जाना. So these weeds जो उसने अपने field में उगाए हैं, वो अब क्या हो गए हैं? झुलस रहे हैं because of no rain or no water.
This was because there had been no rain for a long time. ये इसलिए है क्योंकि long time से, बहुत लंबे समय से कोई बारिश नहीं हुई है. He began to fear that all his hard work would be wasted and he would have no wheat to harvest. Now, this farmer is getting a fear. उसको एक fear हो गया है, डर हो गया है that all his hard work, कि उसका सारा hard work would be wasted. वो जो hard work कर रहा है वो सारा waste हो जाएगा, उसको कुछ return नहीं मिलेगा. He would have no wheat to harvest. और जब उसका जो wheat हुआ है वो फुल ग्रो ही नहीं होगा, उसकी क्रॉप अच्छी ही नहीं होगी, तो नेक्स्ट ईयर वो क्या हार्वेस्ट भी क्या करेगा, वो क्या कटाई करेगा इफ वीट्स विल नॉट ग्रो प्रॉपरली. He felt very sad, इसलिए वो बहुत उदास है. Every morning he went out to the field, looked at the thirsty stalls and prayed for rain. Every morning, हर सुबह उठकर ये फार्मर सेठ अपने फील्ड्स में जाता है, वेंट आउट टू द फील्ड्स, एंड बहुत ही होप से वो प्रे करता है कि आज बारिश हो जाए. एंड ही लुक्ड एट इट्स थ्रस्टी मीन्स प्यासी, थ्रस्ट मीन्स प्यास और थ्रस्टी मीन्स प्यासी. स्टाल्क मीन्स ये जो स्टॉल्क होते हैं जिसपे धान लगता है, जो टहनी पे कुछ भी प्लांट, किसी भी प्लांट पे या ट्री पे जो स्टेम्प होती है जिसपे लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट लगते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टॉल. अब यहाँ पे यू कैन सी दीज स्टॉल्स, और वो उन थ्रस्टी स्टॉल मीन्स दे नीड वाटर, और उनको देखता है तो ही प्रेज फॉर द रेन, वो बारिश के लिए हर रोज प्रे करता है सो दैट इनको वाटर मिल जाए एंड दे विल ग्रो. One day, as he stood looking at the sky hopefully, two little raindrops Pit and Pat saw him. As usual, वो रोज आता है, तो एक दिन what happened when he was looking up, sky को देख रहा होता है, in a hope of rain, बहुत ही उम्मीद से कि बारिश हो, तो two little raindrops, ऊपर से दो छोटे छोटे raindrops जिनका नाम बताया गया है Pit and Pat. They were looking at him. वो इसको देख रहे थे. Pat said, इसमें से एक Pat ने कहा, Look at that farmer. इस फार्मर को देखो. I feel very sorry for him. मैं इसके लिए बहुत सॉरी फील करती हूँ या करता हूँ. He worked so hard. इसने कितना हार्ड वर्क किया है to grow his wheat. अपने गेहूं की खेती के लिए उसने कितना हार्ड वर्क किया है. बट नाउ इट्स ऑल ड्राइंग अप. लेकिन वो सब क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहा है. ये जो वीट है वो सूख रहे हैं, दे आर गोइंग टू डाई. आई वॉन्ट टू हेल्प हिम. और पिट क्या कह रहा है, मैं इस फार्मर की हेल्प करना चाहता हूं. आई वॉन्ट टू हेल्प द फार्मर. यस आई टू सेड पैट. अब जो दूसरा है, एक पिट है और दूसरा पैट है. नाउ पैट इज टेलिंग, इवन आई ऑल्सो वॉन्ट टू हेल्प द फार्मर, बट वी आर ओनली टू लिटिल रेन ड्रॉप्स. एंड दे बोथ आर टॉकिंग विद ईच अदर. तो वट दे आर टॉकिंग कि हम दो तो बहुत छोटे छोटे ड्रॉप्स हैं. वट वी कैन डू, हम क्या कर सकते हैं, हमारे 2 ड्रॉप से फार्मर का फील्ड जो है वो गीला भी नहीं हो सकता. What can we do? हम क्या कर सकते हैं? Just the 2 of us can't wet a big field. हम इतने बड़े फील्ड को गीला भी नहीं कर सकते. Well said. सही कहा. पिट ने कहा, You are right. I know I cannot do much. मुझे पता है मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता. But perhaps I can cheer the farmer up a little. बट मैं फार्मर को चेयर अप कर सकता हूँ, उसको थोड़ी सी, उसको मैं मोटिवेट कर सकता हूँ. एंड आई एम गोइंग टू डू माई बेस्ट. और मैं अपना बेस्ट देना चाहता हूँ. आई विल गो डाउन टू द फील्ड टू शो आई वॉन्ट टू हेल्प. इवन इफ आई कैन नॉट डू एनीथिंग मोर, आई एम रेडी.
What the pit said, पिट क्या कह रहा है कि आई नो आई एम वेरी लिटिल और मेरे एक ड्रॉप से नथिंग विल हैपन, बट आई कैन चेयर अप द फार्मर, लेकिन मैं फार्मर को चेयर अप कर सकता हूँ, मोटिवेट कर सकता हूँ, उत्साहित कर सकता हूँ, एंड आई विल डेफिनेटली डू दिस, और मैं ये पक्का करूँगा. आई एम गोइंग डाउन, मैं जा रहा हूँ, और आई विल डू माई बेस्ट, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा, सो दैट फार्मर को चार्म अप हो जाएगा. और मीन्स इफ यू वांट टू हेल्प समवन, डोंट थिंक कि उसकी वो हेल्प होगी. लाइक वी से इट ना, बूंद बूंद से समुंदर बनता है, तो घड़ा भरता है. तो इफ वी विल पुट 1 ड्रॉप ऑफ वाटर, हो सकता है आपके एक ड्रॉप से उसकी और हेल्प हो जाए, कहीं और से उसको एक ड्रॉप मिल जाए. लाइक दिस द होल फील्ड विल गेट वेट. सो लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन इन दिस चैप्टर. So this pit is ready to go down and help the farmer. Even if I cannot do anything more, मेरे से ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा, but how much I can do, I will do it. पिट का कहना है जितना मैं कर सकता हूँ उतना मैं करूँगा. I am going to help the farmer said. Then before falling, जैसे ही वो नीचे गिरने लगती है ड्रॉप, पिट quickly added. पिट ने फटाफट बोला, पैट कम अलॉन्ग विद मी, पैट तुम भी मेरे साथ आ जाओ. उसने अपने फ्रेंड पैट को, दूसरे ड्रॉप को, लिटिल ड्रॉप को भी बोला, यू आल्सो कम विद मी. वेल इफ यू इंसिस्ट ऑन गोइंग, आई थिंक आई विल कम टू. अब अपने फ्रेंड के बोलने पर पैट कहता है, ओके आई विल आल्सो कम विद यू. वेल इफ एंड विद अ ग्रेट शाउट ऑफ जॉय, और फिर बहुत जॉय, जॉय होता है खुशी, शाउट होता है हल्ला, बहुत हल्ले के साथ, खुशी के चीख चिल्लाहट के साथ, द रेन ड्रॉप्स जम्प डाउन, दोनों रेन ड्रॉप्स नीचे जंप करते हैं. पिट लैंडेड ऑन द फार्मर्स नोज, जो पिट था, जो विलिंग था फार्मर की हेल्प करने के लिए, वो फार्मर के नोज पर आकर गिरता है. एंड पैट फेल ऑन अ थ्रस्टी स्टॉक ऑफ व्हीट, और जो पैट था, दूसरा रेन ड्रॉप था, वो जो जो गेहूं के खेतों के सूखी स्टेम्प के ऊपर जाकर गिरता है. ओह सेट फार्मर सेट, फार्मर सेट कहता है, ओह व्हाट्स दैट, ये क्या है. और रेन ड्रॉप, एक बारिश की बूंद. वेयर डिड इट कम फ्रॉम, ये कहाँ से आई. एट लास्ट आई डू बिलीव वी शैल हैव अ शावर, आखिर में आई होप, आई बिलीव, मुझे यकीन है कि बारिश होगी. By this time, इतने टाइम तक, when both the raindrops, Pit and Pat, were coming down, what happened? Many raindrops had come together to see what all the commotion was about. When they are coming down, they were shouting with joy. वो बहुत joy के साथ, चीख चिल्लाहट के साथ they came down. So commotion means sudden noise, excitement वाली noise. तो उस नॉइस को, वो जो कमोशन क्रिएट किया पिट एंड पैट ने, जो वहाँ पे और रेन ड्रॉप्स थे ऊपर स्काई में, इवन दे केम टुगेदर, वो देखने आए कि व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या हो रहा है. व्हेन दे सॉ द टू काइंड लिटिल रेन ड्रॉप्स गोइंग डाउन टू चीयर द फार्मर एंड टू वाटर हिज फील्ड, वन रिमार्क, जब उन सभी रेन ड्रॉप्स ने देखा कि ये 2 लिटिल रेन ड्रॉप्स, पिट एंड पैट, एक फार्मर को चेयर अप करना चाहते हैं, उसके फील्ड को वाटर करना चाहते हैं, तो वन रिमार्क, एक और रेन ड्रॉप ने बोला, इफ यू टू आर गोइंग ऑन सच अ गुड इरांट, आई विल गो टू, एंड डाउन इट केम. तो उसी तरह एक और रेन ड्रॉप एनकरेज होता है. इरांट मीन्स टू गो ऑन अ शॉर्ट ट्रिप, कोई काम ख़त्म करने के लिए जाना, एक छोटे से ट्रिप में कोई काम कंप्लीट करने के लिए. अ शॉर्ट ट्रिप टू कंप्लीट सम वर्क. अब यहाँ पे क्या काम था, टू वाटर द फील्ड, और ये इट्स नॉट अ बिग जॉब, एक छोटा सा ही काम था, टू गो डाउन. सो एक उन दोनों पिट एंड पैट के नीचे गिरने के साथ साथ उनकी नॉइस से और रेन ड्रॉप्स यहाँ पे इकट्ठे होते हैं, एंड दे आल्सो जॉइन, दे आल्सो केम डाउन, एंड डाउन इट केम. थर्ड रेन ड्रॉप आता है. देन नेक्स्ट, मी टू सेड अनदर, एक और रेन ड्रॉप कहता है कि इवन आई एम गोइंग टू come down and help the farmer.
and I, and I, and I. And so they all joined pit and pat until a whole shower came down and the wheat was watered. ऐसे करते धीरे धीरे वन बाय वन बहुत सारे रेन ड्रॉप्स नीचे गिरते हैं और इस तरह से ड्रॉप ड्रॉप करके वहाँ पर एक अच्छी शावर हो जाती है, एक अच्छी बारिश हो जाती है एंड उससे फार्मर सेठ का फील्ड क्या हो जाता है, वाटर्ड, उसको वाटर मिल जाता है, उसके खेतों को पानी मिल जाता है. Until a whole shower came down. इसी तरह ड्रॉप ड्रॉप करके वहाँ पे शावर हो जाती है रेन की और जो वीट है वो उसको पानी मिल जाता है. Then the wheat grew and ripened and farmer said rejoice. अब खेतों को पानी मिल जाता है, वीट को वाटर मिल जाता है तो दे ग्रो, वो अच्छी तरह से ग्रो होते हैं, राइप पकते हैं एंड फार्मर से रीजॉइस्ड. रीजॉइस मतलब खुश होना. फार्मर से बहुत खुश हो जाता है. वाई ही इज सो हैप्पी? बिकॉज ऑल हिज हार्ड वर्क वॉज फाइनली रिवॉर्डेड. क्योंकि उसके सारे हार्ड वर्कों का रिवॉर्ड, उसको उसका पुरस्कार मिल जाता है, उसको उसका अवार्ड मिल जाता है. और यहाँ पर अवार्ड क्या होगा? ही विल सेल द व्हीट इन द मार्केट एंड अर्न द मनी फॉर हिज फैमिली लिवलीहुड. बिकॉज अब ये क्यों कैसे पॉसिबल हुआ? बिकॉज वन लिटिल रेन ड्रॉप ट्राइड टू डू वट एवर लिटिल इट कुड. क्योंकि एक छोटे से लिटिल से रेन ड्रॉप दैट इज पिट ने इस फार्मर की हेल्प करनी चाहिए. कितनी हेल्प करनी चाहिए? जितना वो कर सकता था, वन ड्रॉप ओनली. बट उसके एक ड्रॉप और उसके फ्रेंड एक और ड्रॉप से धीरे धीरे करके इस फार्मर के सारे फील्ड को वाटर मिल जाता है. सो बाय दिस स्मॉल स्टोरी, दैट इज द नेम ऑफ द चैप्टर इज द रेन ड्रॉप्स, वी लर्न वन थिंग दैट इफ यू वांट टू हेल्प समवन, हेल्प इट. डोंट बॉदर कि आपकी हेल्प कितनी छोटी है या कितनी बड़ी है. इफ यू हेल्प जस्ट लाइक दैट, कोई और उसकी हेल्प करेगा और उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी. सो हेल्प द पर्सन हाउ मच यू कैन डू. ठीक है, हमें किसी की हेल्प करनी चाहिए. ये नहीं सोचना चाहिए कि इस हेल्प से क्या होगा. नो, आपकी हेल्प से भी बहुत कुछ हो सकता है. डोंट थिंक कि थोड़ी सी हेल्प से कुछ नहीं होता. बाय लिटिल लिटिल द बिग थिंग हैपन्स. ओके, सो बिकॉज ऑफ दोज टू लिटिल रेन ड्रॉप्स, मोटिवेशन और उनकी विश कि वो फार्मर की हेल्प करें, पूरे फार्मर के वीट के फील्ड को वाटर मिल जाता है, उसकी क्रॉप अच्छी हो जाती है एंड हार्वेस्ट वाज गुड, और उसको गुड हार्वेस्ट मिल जाती है एंड ही अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ मनी फॉर हिज फैमिली. आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा. रीड दिस चैप्टर 2-3 times and understand it clearly, understand it properly. Till the next video, take care. Thank you.